ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਲੈਜਿਟਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਆਰੰਭ ਔਖਾ, ਹੋਵੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਹੌਸਲੇ ਚੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਨਿਧੀ, ਹੈਲੋ ਕ੍ਰਿਤੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। सो पहला सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरे पेज पे आए, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ। ਹੈਲੋ एवरीवन। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਵਿੰਦਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਾਈ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ,
ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਚਲੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ ਗੌਸਿਪ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਏਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਪਰਸਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਟੂਨ, ਕਿਡਸ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਸਡਨਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਾਣੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਜੋ 149 ਪੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 149 ਪੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਈ ਦਰੁਸਤ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਰ ਆਈ ਦਰੁਸਤ ਆਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਦਾ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਊ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ
ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ यूके ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੇਨਈ ਤੋਂ, ਕਿ ਦੇਖੋ ग्लोबली बिजनेस चल रहा है ना, वर्ल्ड वाइड सारा बिजनेस चल रहा है बड़ा ही सक्सेसफुली। सो निधि, आप बताओ प्लीज अपने बारे थोड़ा सा, निधि कौन है और निधि ने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? निधि हेलो हेलो इंद्रजीत, थैंक यू, मुझे आपने लाइव पे इनवाइट किया। मैं शंघाई में रहती हूँ अभी लास्ट 12 ईयर्स से, और बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में थी जब मैं इंडिया में थी। और बट मुझे शुरू से ही कुछ अपना ऑन माय ओन एंटरप्रेन्योरियल कुछ करना था, बट क्योंकि मैं चाइना में हूँ, शंघाई में हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मैंने ऐसे स्कूल में पार्ट टाइम जॉब किया, क्योंकि आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर, सो आई कैन नॉट गेट फुल टाइम जॉब, सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी। तो मैंने कोशिश किया 3-4 साल, आई कंटिन्यूड, बट फिर वन फाइन डे आई जस्ट लेफ्ट, क्योंकि आई वाज नॉट व्हाट आई वांटेड टू बी। और लाइफ में आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपको अल्टीमेटली वो करना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस देता है जी। और अभी क्या है कि मेरा आई हैव 2 बॉयज, मेरा जो बड़ा बेटा है ही इज इन यूनिवर्सिटी। तो जैसे मनजिंदर ने बोला दैट यू नीड सम पर्पस इन लाइफ। आप कितनी किटी पार्टीज करोगे, कितनी शॉपिंग करोगे, कितना और मतलब यू नीड सम पर्पस इन लाइफ। So I think this business has given me what I wanted, purpose। और आप लाइफ में तभी हैप्पी रहते हो जब आपके पास पर्पस होता है। सो मुझे लगा कि what I was looking for, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से बहुत ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहती थी, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग करूं, ब्लॉगिंग करूं। सो मैं बहुत रिसर्च करी थी। आई वॉज रिसर्चिंग लाइक क्या गूगल ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन कैसा है। सो मुझे जब ये ऐड दिखा तो मुझे लगा आई थिंक दिस इज फॉर मी। और इसमें बहुत, जैसे आप हम सबको पता है कि इसमें बहुत सारी वी हैव बीन गिवन लॉट ऑफ रिसोर्सेज, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो हमको उनको वी हैव टू गो थ्रू इट और फिर हमको फॉलो करना है। तो हमारा जो एफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, एफर्ट तो रहेगा। तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी। जो मैं चाहती थी वो मिल रहा है, मैं बिजी भी रहूंगी और मुझे अपने लिए भी टाइम मिलेगा। सो आई थिंक वही हम सबका एक कॉमन रीजन सबका सेम ही है। जी जी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि देखो, निधि जॉब भी कर रही है और बिजनेस भी कर रही है ना। ये भी नहीं है कि ये जो बिजनेस है सिर्फ जो घर बैठे हैं लोग, जैसे हम जैसी मॉम्स जिनकी मजबूरी है ना बच्चों की टेक केयर करनी है, बच्चे छोटे हैं, कि वही ये बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बिजनेस कर सकता है। कोई एज ए प्लान ए कर रहा है इसको, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम बाहर जॉब नहीं करते, कोई एज ए प्लान बी भी इसको कर रहा है ना। नहीं इंद्रजीत, मैंने जॉब एक्चुअली क्विट किया 6-7 मंथ्स पहले, एंड देन आई हैव जॉइन्ड दिस, क्योंकि मुझे वो करना था जिसमें मुझे मजा आए। आई थिंक दिस इज द बिजनेस वेयर आई वुड एंजॉय। तो हाँ जी। तो आपको कैसे अच्छा लगा ये चूज करके, या फिर आपको? हाँ जी, मुझे पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी जो चीजें मैं कर रही थी वो सारी चीजें मैंने वीव करके, आई थिंक दिस बिजनेस हैज गिवन मी द इंटीग्रेटेड, बोलते हैं ना कि इंटीग्रेटेड बिजनेस है, जो मैं ऑलरेडी कुछ चीजें ट्राई करती थी और वो सारी इसमें मुझे मिल गई। तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और जो मेरी फ्यूचर लर्निंग है वो सब कुछ इसमें मिल गया मुझे। सो आई एम वेरी हैप्पी। और बेस्ट पार्ट है कि मेंटर्स है, आप लोग हो जो ओल्ड बिजनेस ओनर्स है, so everyone is available, so it's amazing। सो एनी वधिया कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, किसी से भी आप किसी भी टाइम हेल्प ले सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ जो आपके कोच मेंटर्स है वही आपकी हेल्प करेंगे। सो एवरीबॉडी इज अवेलेबल एनी टाइम फॉर यू। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट है मेरे साथ कृति गांधी। कृति, आप बताएं प्लीज अपने बारे में थोड़ा सी इंट्रोडक्शन दे और बताएं कि आपने क्यों ये बिजनेस ज्वाइन किया। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंद्रजीत, आपने हमें इनवाइट किया अपने पेज पे, एंड थैंक यू हरविंदर, मजिंदर एंड निधि, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर आंसर। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आएगा कि हाउ डिफरेंट वाई कैन बी अकोमोडेटेड अंडर जस्ट वन बिजनेस।
सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। लाइक शी सेड, माय नेम इज़ कृति। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और पिछले 3 साल से कनाडा में अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोजेक्ट फाइनेंस में पिछले आई थिंक आई वर्कड इन प्रोजेक्ट फाइनेंस फॉर ओवर अ डिकेड इन बैक इन इंडिया, और यहाँ आने के बाद भी मैं 2 साल से जॉब कर ही रही थी। बट व्हाट आई नोटिस्ड, एक तो इंडिया में जॉब करना बहुत ही आसान था क्योंकि आई वाज स्टेइंग विथ माय एक्सटेंडेड फैमिली, और दूसरा कि एज वी ऑल नो कि वहाँ पे हमें डोमेस्टिक हेल्प भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो मदर का जो रोल होता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेचुरली एज कम्पेयर टू हस्बैंड हमारी थोड़ी ज्यादा ही रहती है, तो वो काफी हद तक शेयर्ड हो जाती थी बिकॉज ऑफ ऑल दिस। जब यहाँ मूव हुए तो 2-3 इश्यूज जो हमने नोटिस किए कि वी माय हस्बैंड एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंस द डे वी अराइव्ड इन कनाडा, बट very soon we realized that paychecks are not that enough to finance our to plan our future financial expenses. जैसे कि मैं बात करूं कि जब भी हम नए कंट्रीज में आते हैं, व्हेन वी लीव अवर होमलैंड, तो तुरंत हमारे मन में ये होता है कि हम वापस कब इंडिया जाएंगे। तो वो सारा प्लान करना, बच्चों की पढ़ाई जैसे दिन ब दिन बढ़ती रहती थी। माय डॉटर इज जस्ट अबाउट टू कम इन द यूनिवर्सिटी, तो वी नीड टू प्लान बिकॉज वी ऑल नो दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट फ्री एंड इट्स हाईली कॉस्टली इन दिस कंट्रीज। थर्ड होता है कि हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हमारे पेरेंट्स के प्रति या फिर हमारी फैमिली के प्रति, सो वी नीड टू सपोर्ट देम। तो मुझे नहीं लग रहा था कहीं से भी कि हमारे जो पे चेक्स आते हैं उसमें से हम इतना सारा कुछ प्लान कर सकते हैं। और दूसरी चैलेंज होती है कि वी बीइंग एन इमिग्रेंट वी हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो यहाँ पे भी एक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए था, वी नीड टू बाय अ हाउस, गेटिंग अ कार, और फिर बच्चों को भी एक लेवल ऑफ एजुकेशन और एक लेवल ऑफ लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, वो भी मेंटेन करनी होती है। तो वी रियलाइज दैट ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी कवर्ड अंडर जस्ट वन सैलरी। तो हमने सोचा कि कुछ और भी साथ में करते हैं। उस टाइम पे डेफिनेटली जॉब छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, बट हमने साथ में और कुछ भी सोचना, लाइक और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और जॉब के साथ हम क्या कर सकते हैं वो हमने देखना शुरू किया। थोड़े ही टाइम हुआ था, बट मैंने ये भी नोटिस किया कि जो जॉब था, अभी मेरा ऑलरेडी इंडिया में 11-12 साल का करियर, तो यहाँ पे भी मैंने मिडल मैनेजमेंट पोजीशन से शुरू किया था। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमें ना इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी कि वी ऑलवेज लुक फॉर ग्रोथ। तो जब हम जॉब में भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम यहाँ से जंप करें, हम कुछ और ऊपर जाए, हम और नई पोजीशंस को और नए करियर को अचीव करें। तो वो मैंने भी किया। दूसरी जॉब मिली, मैंने थोड़ा जंप लिया, मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुआ, बट ऑन द अदर साइड मैंने देखा कि मेरे घर में मेरी इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही थी। बच्चे मेरे से काफी दूर होते जा रहे थे बिकॉज आई वॉज सो बिजी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। वी ऑल नो कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है। तो लॉन्गर वर्किंग आवर्स थे, स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस थी जो मुझे कंप्लाई करनी पड़ती थी। कुछ डेज जैसे बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, कुछ अभी मैं बताऊं, जैसे ये फरवरी मार्च का महीना होता है जो हमारा टैक्स सीजन भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंट क्लोजर भी होता है। तो इन दिनों में जैसे मैं पूरा दिन 10-10 11-11 घंटे आई हैड टू डिवोट टू माय जॉब। सफर होती थी मेरी फैमिली और बच्चों को सबसे ज्यादा ये होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होने लगा। बच्चों को लगा कि मम्मी बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है, बहुत ही लाइक शी इज ओवरलोडेड विथ वर्क। उन्होंने मेरे से बात करना कम किया, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे तक लेकर आना बंद कर दिया, खुद ही सॉल्व करते रहे। अब आई नो कि उनके पास इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस भी नहीं थे, दे कांट सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। बट मुझे लगा कि काफी हद तक वो मुझसे रीच आउट करना ही बंद कर दिया। एंड आई फील आई कैन सेंस दैट वैक्यूम कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया, डिस्टेंस होने लगा। तब मैंने रियलाइज किया दिस इज नॉट द वे, और मैं कॉर्पोरेट कल्चर में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। दूसरा, हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट वी डू द सेम थिंग over and over again and again and again every day, 8 hours of job commuting 1 or 2 hours, so altogether it about 10 hours a day। तो 10 hours a day कितना हो जाता है। तभी मैंने सोचा कि कुछ और भी ऑप्शंस देखते हैं, और तब हम देख रहे थे कि कुछ मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर लूंगी ताकि मैं बच्चों को भी देख पाऊँ, घर में हाउस होल्ड एक्सपेंस में भी हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड बिगेस्ट चैलेंज कि बीइंग एन इमिग्रेंट वी आल्सो नीड टू मेंटेन द कल्चर। हमें बच्चों को भी वही रूट से जुड़ के रखना पड़ता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये माहौल नहीं होता। वी एज अ पेरेंट हैड टू क्रिएट दैट
एनवायरमेंट जी कि हाँ हमारे घर में ये फेस्टिवल है, इसमें ये नहीं करते, ये कर दे, तो इन सब सारी चीजों हम ऑफिस के इतने हैवी वर्कलोड के साथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं जब वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वगैरह कुछ ढूंढ रही थी, डेटा एंट्री व्हाट्सोएवर, मेरे कोई ऐसी प्रेफरेंसेस नहीं थे, बट तभी मुझे मेरे कोच का एड दिखा एंड आई रीच्ड आउट टू हर। तो शी एक्सप्लेन की नहीं मैं घर से ही करती हूँ। देन जो जब भी मैंने उससे बात करी, इट लुक्स एवरीथिंग, आई वॉज कम्प्लीटली अमेज टू सी कि हाउ वो घर से ही रह के, छोटे छोटे, उसके तो मेरे से भी छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ रह के इस बिजनेस को कर रही थी। तो जी मैंने उसको रीच आउट किया एंड मुझे अच्छा लगा। इमीडिएटली आई वेंट फॉर द अनदर स्टेप ऑफ पेइंग $149। आई टुक द ट्रायल पीरियड एंड आई डिड माई ऑल द ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड जितना हमें दिखता है लुक्रेटिव, उतना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट आई डिड ऑल माई रिसर्च एंड फाइनली आई जंप इनटू दिस बिजनेस एंड बिलीव मी, द बिजनेस, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं मिलता है हमें, इस बिजनेस के साथ एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है। तो मुझे लगा था कि हाँ थोड़े बहुत टूल्स मिल जाएंगे, थोड़े बहुत हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी, बट नो, इट्स द लाइव कम्युनिटी ऑफ 192,000 पीपल जो यहाँ पे है, जो उसका सपोर्ट है, इट्स अनमैचेबल विथ एनी बिजनेस। जी या सो यही है कि देखो हम जॉब करते हैं तो वहां पे हमें पता है कि हम लोग इतने घंटे वहां लगाएंगे तो हमें सैलरी आ रही है ना, लेकिन हमारा जो बिजनेस है, देखो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप 2-3 घंटे, जो हमारी वो है कि बिजनेस की रूल बोल लो कि हमको देने हैं, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितना मर्जी टाइम दो इस बिजनेस को, राइट। पर जो बिजनेस की रूल है वो है कि 2 या 3 घंटे तो आप दिन में, इतना तो टाइम हम निकाल ही सकते हैं। बच्चे छोटे हैं तो बच्चे जब सोते हैं, जब सोने चले गए उसके बाद हम टाइम दे सकते हैं अपने बिजनेस को। बच्चे किसी के स्कूल जा रहे हैं तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम है ना। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको फिक्स्ड इनकम आएगी कि जितना जैसे जॉब में होता है। इसमें तो आपकी ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी कभी भी, है ना। सो निधि, मेरा आपसे जी निधि आपसे क्वेश्चन है, जैसे आप आज आपका पहला लाइव था, राइट? सेकंड फर्स्ट लाइव लाइव, सेकंड लाइव है। तो जब आपने फर्स्ट लाइव किया तो आपको कैसे, आपको लगा कि हाँ अभी क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आपके अंदर, कि हाँ किसी के सामने जाकर बोलना, सामने आना। तो आपको किसी ने फोर्स किया कि नहीं आपको लाइव करना ही पड़ेगा, अभी आप इस बिजनेस में आए हो, या कैसे, आपको क्या कहना चाहते हो नहीं, इसके? मुझे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली टाइम तो लगता है, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और मैं ना जो पिछले 6 साल से मैं वर्कशॉप्स और कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स एंड विमेन के साथ मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत सारे इवेंट्स, तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे 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 बढ़ गया, जो कि बहुत मुझे हेल्प करेगा इस बिजनेस में। तो जहाँ की अगर मुझे 3-4 महीने लगने थे, इनफैक्ट मैंने जो मेरी मेंटोर और कोच है, मैंने उसको बोला नो आई एम रेडी, आप मुझे लाइव ले आओ। एंड देन उन्होंने मेरे साथ लाइव किया, मैंने कृति के साथ भी लाइव किया। तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसने मुझे हेल्प किया, इसलिए मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे को पता है मुझे करना क्या है, और ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, तो मुझे ग्रास्प करने में भी टाइम नहीं लग रहा है। सो एक्चुअली मुझे बहुत, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। लेकिन फोर्स किसी ने नहीं किया इंद्रजीत, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, आपको ना हमें कोई फोर्स करता, ना हमको किसी को फोर्स करना, बाय पर्सनालिटी। जैसे मुझे किसी को भी किसी चीज के लिए फोर्स करना नहीं अच्छा लगता। आज मैं अपने फ्रेंड्स को ये नहीं बोलना चाहती हूँ मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो आप भी करो। द बेस्ट पार्ट इज कि आप सिर्फ अपने पिच करते हो एंड पीपल रीच आउट टू यू। अगर वो इंटरेस्टेड है, हम रिसोर्सेज उनको बताते हैं, वी हेल्प देम, वी गाइड देम। If they are interested, it's good. If they are not interested, then also it's fine. So there is like, we are not forcing anyone. That is the best part. ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ कोई बंदा ढूंढ रहा है कि हाँ मुझे कुछ करना है ना, घर से रहकर करना, बच्चों को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना, तो वो डेफिनेटली वो इस बिजनेस का पार्ट बनेगा ना। सो ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਆਪਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। नो प्रॉब्लम।
ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥਰੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਕਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਟ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਆਫਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਈ ਪਰਸਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ जस्ट टाइम वेस्ट करते सीगे जी, है ना। तो कृति, आप बताओगे, जैसे मेरा 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हुई, तो वो बोल रहे कि ये चेन रिएक्शन है, ये चेन बनानी पड़ेगी, या कुछ ऐसा है हमारे बिजनेस में कि हाँ, हमको बंदे जोड़ कर हमें चेन बनानी है, या कोई पिरामिड स्कीम है? आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? वेरी गुड क्वेश्चन इंद्रजीत, और आई वुड रियली लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो, एक तो जब आप क्वेश्चंस लेकर आते हैं तो उनके पास खुद ही नॉलेज नहीं होती कि एमएलएम बिजनेस होता क्या है। तो मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि एमएलएम जिसको बोलते हैं और पिरामिड स्कीम जिसको बोलते हैं, वो व्हाट दैट इज, देन आई कैन स्विच टू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर बिजनेस एंड दैट बिजनेस। सो जो पिरामिड और जो एमएलएम स्कीम्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट दुनिया में सबको पता है कि जो बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स होते हैं उस सब में एमएलएम और पिरामिड स्कीम्स के द्वारा ही वो बिजनेस चलते हैं ज्यादातर। तो उस बिजनेस में ये होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आप वो बिजनेस से जुड़ते हो, तब आपको कुछ डाउन पेमेंट करके कंपनी के खुद प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। दूसरी चीज होती है कि आपको किसी के अंडर ज्वाइन करना पड़ता है। तीसरी चीज होती है कि इफ यू वांट टू मेंटेन सर्टेन लेवल, जैसे कि आपने कोई नंबर से या कोई मिनिमम लेवल से ज्वाइन किया है, तो वो लेवल आपको मेंटेन करने के लिए भी यू नीड टू कीप ऑन बाइंग दोज स्टॉक्स।
आपका स्टॉक नीचे बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू कंटिन्यूअसली बाय फ्रॉम कंपनीज टू मेंटेन योर आईडी। जो फोर्थ डिफरेंस है कि आप कभी अपने अपलाइन जिसके नीचे आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, आप उनको कभी भी सरपास नहीं कर सकते। ये बात हो गई एमएलएम की। अब जी जब हमारे बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले कि हम इसमें चेन नहीं बनाते। जो भी इंसान इस बिजनेस को ज्वाइन करता है वो अपना खुद का बिजनेस ओनर है। जी वो कोई डाउनलाइन अपलाइन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डाउनलाइन अपलाइन हम सिर्फ इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज न्यू टू दिस बिजनेस एंड दैट पर्सन नीड्स सम मेंटरशिप ओवर एंड अबाउट द ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग के ऊपर से भी हम कोई सपोर्ट देते हैं, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे यूएस कनाडा में जब बैंक में अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो भी हमें कोई एक पर्सन असाइन किया जाता है कि इन फ्यूचर यू हैव सम इश्यूज, सो दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू दिस पर्सन। इसी तरह से इस बिजनेस में भी हम आपको पहले से ही एक मेंटर एंड कोच प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है या कुछ आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं तो यू हैव दोज पर्सन एट योर इमीडिएट कॉन्टेक्ट, दैट्स द ओनली थिंग। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, किसी को सेलिंग नहीं करनी है, सेलिंग इज ऑटोमेटिकली डन बाय द सिस्टम। यू जस्ट नीड टू प्रमोट द बिजनेस मॉडल, नॉट द प्रोडक्ट। हम लोग यहाँ पे कितने सारे लाइव करते आए हैं, आगे भी जाके करेंगे। वी नेवर एवर मेंशन अबाउट द प्रोडक्ट। हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस मॉडल को प्रमोट करते हैं, नॉट द प्रोडक्ट। हम अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं, वी आर नॉट द सेल्स पर्सन टू क्लोज द डील। हमें कोई टारगेट्स अचीव नहीं करने, हमें कोई स्टॉक नहीं होल्ड करके रखना, हमें कोई शिपिंग नहीं करनी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एमएलएम को हमारे बिजनेस से डिफरेंशिएट करता है एंड दैट इज कि हम अपने बिजनेस में अपने ऊपर वाले जिसने हमारे से पहले ज्वाइन किया है, डेफिनेटली हम अपने कोच और मेंटर को सबसे पहले लेकर आएंगे क्योंकि हम उन्हीं के नीचे ज्वाइन करते हैं। तो हम उनको भी सरपास कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो एमएलएम और पिरामिड में कभी भी पॉसिबल नहीं है। एमएलएम और पिरामिड स्कीम में जब आप ग्रो करोगे तो आपसे पहले आपकी अपलाइन ग्रो करेगी जी यहाँ पे आप डेफिनेटली उनको सरपास कर सकते हो। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। दूसरा, बहुत सारे एमएलएम और पिरामिड स्कीम्स होते हैं जो टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होते, जो लीगल नहीं होते, बट हमारा बिजनेस ये टैक्स सीजन है, आई थिंक हम सबके पास अभी T4 है या फिर आपके पास जो 1099 है वो आ गया होगा। तो हम सबके पास टैक्स का स्लिप आता है और हमें इस बिजनेस से जो भी इनकम होती है इट्स कंप्लीटली टैक्सेबल। जी 24-25 कंट्रीज में ये बिजनेस रजिस्टर्ड है। अगर कोई एमएलएम होता या कुछ ऐसा होता तो वो इतने सारे कंट्रीज में रजिस्टर्ड नहीं होता। जी और पिरामिड स्कीम होती है वो इतने लंबे टाइम तक नहीं चलती। जब आप इस बिजनेस में आओगे, एक स्टेप और अगर आगे लोगे, देन यू विल कम टू नो कि ये बिजनेस है, ये जो कंपनी भी इसमें है। मैं ये नहीं बोलूंगी कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट और सर्विस और पीपल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप पूछ रहे हो कि हमें लोगों को बनाना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, बट बिजनेस कैन नॉट बी डन विदाउट पीपल। आप अपना गैस स्टेशन भी ओपन कर रहे हो, अगर कोई लोग आएंगे ही नहीं आपके यहाँ पेट्रोल डलवाने तो वो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जी आप ग्रोसरी स्टोर भी खरीदोगे तो कोई आपके वहां पे फुटफॉल नहीं होगा तो आपका स्टोर नहीं चलेगा। तो जी सेम वे इट्स इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोग है तभी तो बिजनेस है, प्रोडक्ट है तभी बिजनेस है, सर्विस है तभी बिजनेस है। जी सो आई डोंट थिंक कि इसमें हम लोग बना रहे, लोगों को हम नहीं बुला रहे। और हमारा बिजनेस का प्रोटोकॉल है कि हम किसी को चेज नहीं करते। वी नेवर, ये हमें पहली चीज सिखाई जाती है कि नेवर एवर चेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, नेवर एवर बग देम टू बी इन दिस बिजनेस। जी ना हमें कोई टारगेट्स अचीव करने होते, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है जो बाकी सारी जगह पे होता है, जो हमने देखा भी है और हमने एक्सपीरियंस भी किया है। जी So I think these are the, more than important points that need to be considered while, differentiating whether this is MLM or not. ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ
देखो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ हम लोग बिजनेस का मॉडल नहीं आपको पूरा बताते हैं ना, क्योंकि हमारे कंपनी हर एक कंपनी के कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं जो हमको भी फॉलो करनी पड़ती हैं, जो भी बिजनेस का हिस्सा बनता उसको भी फॉलो करनी पड़ती है। तो बिजनेस का मॉडल हम कभी पूरा नहीं बताते अपने लाइव में, तो उसके लिए भी स्टेप्स रखे हुए हैं। आप अपने ईमेल और नेम से रजिस्टर करो, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप देखो, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपको और इस बिजनेस की डिटेल में जाना है तो आप 149 का ट्रायल पीरियड लो, जो कि टोटली रिफंडेबल है। आपको अगर अच्छा लगेगा, उसमें क्या है कि हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू सारा कुछ स्क्रीन शेयरिंग करके हम आपको सारा कुछ दिखा देते हैं कि ये बिजनेस है, ये इसके ट्रेनिंग है, ये मार्केटिंग टूल्स है, कैसे हमको इनकम होगी, ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, राइट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग करो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई चीज नहीं करेगा। आपने जो 149 जो आपने पे की है वो आपके टोटली रिफंडेबल है। ये 149 यूएसडी जो डॉलर है, ये कंट्री के हिसाब से है, किसी जैसे इंग्लैंड में ले लो और इटली में, वहां पे करेंसी के हिसाब से ये 129 यूरो या पाउंड्स है। तो डिफरेंट है प्राइस का भी। तो पर अच्छी बात यही है कि ये रिफंडेबल है, आपका $1 और £1 भी नहीं इसमें से काटा जाता कि हाँ अगर आपको वो देखने के बाद हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि शायद ये पहले बोल देते हैं बाद में कुछ और होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इंद्रजीत, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि हम बिजनेस मॉडल पहले से बताते नहीं है, वी आर रेडी टू ओपन, यू नो, एवरीथिंग इज ओपन टू देम, बट एक कंडीशन यही होती, कंडीशन भी नहीं बोलूंगी, बट ये एक चीज होती है कि जैसे आप अगर कोई यूनिवर्सिटी में या कहीं कुछ आप इंटरेक्ट करते हो कोई नई फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो पहले आपको एक ब्रोशर दिया जाता है, यू नीड टू स्टडी दोज थिंग्स, क्योंकि ये एक पूरी बिजनेस की बात है। आप जब जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो, आई थिंक हमारे काफी व्यूअर्स होंगे और हम में से भी कोई लोग होंगे जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो फर्स्ट यू नीड टू गेट द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वो आपको एक पूरा पैम्फलेट आता है, एक पूरा ब्रोशर आता है कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। सेम वे वी ऑल्सो हैव ए वेबिनार, इट इज इन अ वेबिनार फॉर्म। तो हमने वो चीज वेबिनार फॉर्म में, वो वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने बनाया हुआ है। तो होता क्या है कि आज मेरे पास 10 इंक्वायरी आती है, तो इंद्रजीत मैं अगर सुबह से बात करती हूँ तो आई मे नॉट बी, माई आंसर वुड नॉट बी द सेम जब मैं 5th बंदे से बात कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो जस्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द आंसर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, वी ऑलवेज इंस्पायर एंड एनकरेज यू टू वॉच द वेबिनार। जी, जब वेबिनार देखते हो देन यू विल डेफिनेटली रियलाइज, क्योंकि वो हम नहीं बोलेंगे कि वेबिनार इज अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द बिजनेस, ऑफ कोर्स, बट हाँ पहले आप देखो तो सही कि बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या आप कर सकते हो, क्या आपको लग रहा है कि ये दिस इज समथिंग फॉर यू, बिकॉज अगेन एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू चेक आउट कि हम कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और क्या आप इस बिजनेस के लायक हो, आपको लग रहा है कि आप इस बिजनेस में लंबे टाइम तक कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो आपको ओवरनाइट रिटर्न दे दे। इट टेक्स सम टाइम, यू नो, इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी, यू हैव टू ग्रो इट बाय डेली। तो इसीलिए हम नेक्स्ट फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन रखा है कि जहाँ पे आप पे करके पूरा बिजनेस का मॉडल हम ओपन कर देते हैं, हम बताते हैं पूरा कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपेंसेशन प्लान क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, कैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हमें मिलती है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस बिजनेस मॉडल। और जो आप देखते हो ट्रायल पीरियड में वही एक्चुअल बिजनेस होता है, देयर इज नथिंग, नो मोर रॉकेट साइंस, और कुछ भी इससे अलग नहीं होता। So we are completely transparent, company's model is completely transparent, but देखो $149 पे करके कंपनी अब जब अपना पूरा मॉडल आपके सामने ओपन कर दिए, तो कंपनी की भी तो खुद की प्राइवेसी होती है ना। कंपनी इज ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि मेरी जो चीजें, मेरी जो मॉडल शेयर हो रहा है वो कोई रियल बंदे के साथ या कोई वो ऑथेंटिक बंदे के साथ शेयर हो रहा है कि नहीं। जैसे हमें अपनी प्राइवेसी होती है वैसे कंपनी को भी अपनी प्राइवेसी होती है। सो दैट्स द ओनली रीजन। बाकी हम सब कुछ बताते हैं। यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग बिफोर गोइंग द पेड रजिस्ट्रेशन फेज। आप जब वेबिनार देखते हो उसके बाद भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। जी, अभी भी अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इंद्रजीत को वीडियो लेके मैसेंजर पे या उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करके दे कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। जी। सो यही है ना कि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी है ये इंटरेस्ट देखने के लिए भी रखी है कि बंदा सच्ची में कुछ करना चाहता है या ऐसे ही बस टाइम वेस्ट कर रहा है कि बस नॉलेज ले लो और उसको बस वहीं पे छोड़ दो, है ना। तो यहाँ से इंटरेस्ट भी शो होता है बंदे का।
मैं ये कुछ ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने हाँ जी, रिसेंटली जरूर ज्वाइन किया है। जी। $149 जब आप पे करते हो, वैसे भी बोला गया है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो यू एंड अप पेइंग मोर देन जी, $149। उससे एक तो देर इज नो फ्री मील। अगर आप $149 लेते हो तो आप ये दो चीजें, आपको मैसेज आता है कि कंपनी भी सीरियस है और जो कस्टमर है वो भी सीरियस है। बिकॉज जी, अगर आप फ्री वेबिनार करोगे ना, शायद हम नहीं देखेंगे, हम कहेंगे राइट, अरे फ्री। बट जब हम 149 पे करते हैं ना, जैसे मैंने 2 बार देखा, आई वॉच ऑल द वीडियोज 2 टाइम्स, और मैंने 2 पेज के क्वेश्चंस बनाए थे, हुँ, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वेदर आई वांट टू गो और आई डोंट हुँ, वांट टू गो। इफ आई जी, डोंट वांट टू गो 149 मैं 2 दिन में रिफंड ले लूंगी, बट इफ आई वांट टू गो फिर मैं उसको ठीक से देखूंगी, डिटेल में हुँ, क्वेश्चन देखूंगी। सो ये बहुत चीजें डिफाइन करता है, $149 जी, सीरियसनेस डिफाइन करता है ये। जी, या आपने हाँ, निधि ठीक कहा, क्योंकि फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करता। कदर नहीं करता, अगर आप सही बात है। पे करेंगे तो आप Completely agree. रिस्पॉन्सिबल हो जाते, हुँ, आप जी, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगर हम फ्री में भी नहीं आपको तो नहीं मतलब देखोगे। नहीं। जी, और इसका 3 घंटे का वीडियो है। अगर हम एक एक से को एक्सप्लेन करने लगे तो हमारा एक के साथ ही एक इंक्वायरी को ही मतलब समझाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये जब आप 149 पे करते हैं तो वीडियो बेस्ड है, और एक स्टोरी सुनना और एक वीडियो में स्टोरी देखना, देखना जी, दो बहुत डिफरेंट चीजें डिफरेंस हैं। या हाँ जी। या तो यही है इसके कि लिए जो चीज आपको देखने के बाद पता चलेगी वो आपको हमारे बताने से वो सारी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप 149 पे करो, रिफंडेबल है, और हुँ, देखो अपनी आंखों से देखोगे और आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएंगे देखने के बाद कि हाँ मुझे ये चीज यहाँ से कैसे हो रही है, क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि मैंने पता हरविंਦਰ ने जाना ਆ ਬੱਚੇ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 149 ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਜੀ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ 149 ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਜੀ। ਸੋ ਸੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜੀ, ਸੋ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ
ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਲਊਂਗੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ, ਰੁਚਿਤਾ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸੋ ਜਸ ਕਾਜਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੀ ਨਵਾਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਚ। ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। so much. Thank you so much. Thank you, everyone. ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਥੈਂਕ See ਯੂ। you everyone. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।